Hi dear students, let's see this question that was asked in KVPY 2019 SX Part 1 Physics paper. The question is a regular question, although there are two important assumptions that KVPY should have mentioned in this question. Otherwise, this question will be difficult to handle. So we are going to list down those two assumptions that KVY has not mentioned, but we will make those two assumptions. And why, what is the need for those two assumptions, that also I am going to tell you. And then once we make those two assumptions, the question is fairly simple. So let's see what's happening over here. There's a solid sphere of radius r, uh, so bottom of this sphere is at a height of h from the ground, and this sphere starts pure rolling on this plane. Okay, finally it strikes this block which is of same mass. The collision is perfectly elastic. We have to find the speed of the block after the collision. This height is given as 7 meters. Ideally, in this question, what we will do, we will conserve the energy from initial position of the sphere to the final position. That means when it lands on the ground, and between these two positions we will conserve the energy, and we will be able to find the speed of the center of the sphere. And since after that the collision is perfectly elastic in nature, masses of both the block and the sphere is same, so velocities will be interchanged. Essentially speaking, the speed that center of the solid sphere acquires at the bottom, that will be our answer, because we know that after the collision speed is going to interchange, right? Now, what are these two assumptions that I'm talking about, which we should make, or which we are making inherently while we are solving these two questions? This question, okay. So let's understand the assumptions. Okay, so let me draw the figure slightly for your better understanding. Okay, so this is the sphere. Okay, now if you see, this is what we are calling as H. Okay, and this is the ground. Okay, so if this angle is theta, so uh, you see that this angle will also be theta. Okay, this angle will also be theta, so this angle will be 90 minus theta, right? So with respect to this point, with respect to this horizontal, the center of the sphere is, now this is r, right? This is radius, so this will be r sine of 90 minus theta, that means r cos theta. So with respect to this horizontal, center of the sphere is actually r cos theta above with respect to this line. Can you see that? इस लाइन के पर्सपेक्टिव से जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है वो r cos थीटा ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। अब व्हेन द स्फीयर विल बी ओवर हियर, तो इस लाइन के पर्सपेक्टिव से सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी ओनली r अबव, ठीक है, r अबव हो जाएगा, ठीक है। सो हाउ मच हैज सेंटर डिसेंडेड, सेंटर कितना नीचे आया है? तो अगर तुम ध्यान से सोचो तो इसमें थीटा का फैक्टर आ जाएगा, मतलब ये जो सेंटर है इस लाइन से कितना ऊपर था, आर साइन थीटा ऊपर, आर कॉस थीटा ऊपर था, ठीक है, आर कॉस थीटा ऊपर था, ठीक है। एंड अब यहाँ से आर ऊपर है, ठीक है। तो वी कैन से दैट कितना लिखा जाएगा, देखो एच नीचे आया, मतलब अगर इस पॉइंट के पर्सपेक्टिव से बोले तो एच नीचे आया, ठीक है, इट हैज डिसेंडेड एच डाउन, ठीक है। बट इससे ये आर कॉस थीटा अबव था और इससे ये आर अबव है अब, ठीक है। हेंस वी शुड डिडक्ट दिस वैल्यू, आर माइनस आर कॉस थीटा में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे तुम ये सोचो, फॉर एग्जांपल ये हाइट 2 है, ठीक है, मतलब इस चीज को मैं 2 कह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये चीज 2 है, ठीक है, एंड ये चीज 3 है, ठीक है। तो इस लाइन के पर्सपेक्ट तो ग्राउंड से कितना 9 ऊपर हो गया, ग्राउंड से 9 ऊपर हो गया क्योंकि एच 7 है, और अब ये ग्राउंड से 3 ऊपर है, ठीक है। तो मतलब कि कितना हो गया, 9 माइनस 3 6 नीचे आया, सेंटर 6 नीचे आया, तो वो कैसे लिखेंगे, 7 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। ये सॉरी इसमें से माइनस होगा, ये माय बैड। तो इसमें से h माइनस आर कॉस थीटा होगा। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि ये जो सेंटर जितना डिसेंड करेगा उसकी वैल्यू होगी h माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। बट अगर r बहुत छोटा मान लिया जाए तो इस फैक्टर को अपन h के टर्म में h के सामने निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो पहला अजम्पशन ये है कि r इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज वेरी वेरी स्मॉल। दिस अजम्पशन वी हैव टू मेक ओवर हियर, पहली चीज, ठीक है। दूसरा वेरी वेरी क्रिटिकल अजम्पशन इज दिस, ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल अजम्पशन दूसरा ये है
कि ये जो प्लेन है ना, ये एक ऐसा स्मूथ प्लेन होगा, मतलब कि दिस कैन नॉट हैव अ किंक, यहाँ पे एक शार्प एज नहीं हो सकता, नहीं तो एनर्जी का लॉस होगा। तुम सोचो जब ये स्फीयर आ रहा होगा तो ये जैसे रोल करते आएगा और यहाँ से धड़ भिड़ेगा, मतलब यहाँ से ये जो ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक करेगा, धड़, है ना, ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक करेगा। तो वेलोसिटी का जैसे यहाँ जब ये ग्राउंड पे आने के पहले वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, और इसके बाद वेलोसिटी सडनली चेंज होकर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो वेलोसिटी का जो इंक्लाइन प्लेन के ग्राउंड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सडनली खत्म हो जा रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को अपन इग्नोर कर सकते हैं अगर ये स्मूथली इंक्लाइन प्लेन इससे स्मूथली जुड़ता है, हेंस तो ये चीज बोली जा सकती है कि इन दिस केस देयर विल बी नो एनर्जी लॉस, तो ये स्मूथली जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि दीस टू assumptions आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। Hence, what two assumptions are we taking? कि radius of the sphere is very very small, ठीक है। Secondly, inclined plane smoothly join कर रहा है horizontal surface से, ये दो assumptions important हैं, ठीक है। अब अगर ये दो assumptions ले लिए हैं तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब ये स्फीयर यहाँ पहुंचता है, ठीक है, जब ये स्फीयर यहाँ पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पे, तो वी कैन कंजर्व द एनर्जी, mgh का लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, दिस विल बिकम ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दिस विल कन्वर्ट इनटू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv² होती है ना, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सिंस इट्स अ सॉलिड स्फीयर सो वी विल राइट हाफ I विल बी 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा को वी कैन राइट v by r, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर विल बिकम v² by r², करेक्ट। तो बेसिकली ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m m m भी कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट जी एच की वैल्यू आ रही है हमारे पास v² by 2 प्लस v² by 5, दैट मीन्स 7v² by 10, दिस इज व्हाट वी गेट, है ना। तो v की वैल्यू आई, मतलब जो सेंटर की स्पीड है वो हो जाएगी 10 इंटू जी एच अपॉन 7, ये आई सेंटर की स्पीड, स्फीयर के सेंटर की स्पीड, ठीक है। और ग्रेविटी की वैल्यू अगर अपन 10 एज्यूम कर लेते हैं, हाइट की वैल्यू अपन 7 बोल देते हैं, ठीक है, और ये 7 है, hence we can say that v की वैल्यू कितनी आती है, 10 मीटर पर सेकंड। तो दैट मीन्स दिस इज द स्पीड दैट द ब्लॉक इज गोइंग टू एक्वायर आफ्टर कोलिजन, स्पीड सिर्फ इंटरचेंज हो जाएगी और ये जो है स्फीयर की जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे अपन ये नोट करते हैं, जैसे कि स्फीयर की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो खत्म हो जाएगी बट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी खत्म नहीं होगी। तुम ये सोचो कि ये जो स्पीड v है ये खत्म हो गई है और ये ओमेगा भी बचा रहेगा, तो ब्लॉक तो इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू कर जाएगा, बट ये स्फीयर की जो स्पीड है v ये खत्म हो जाएगी, बट ये स्फीयर ऐसे रोटेट कर रहा होगा, है ना। ओमेगा विल स्टिल बी देयर, ठीक है। अगर अपन ग्राउंड को स्मूथ मान लेते हैं तो अपन बोल सकते हैं कि जो है कि ओमेगा खत्म नहीं होगा और ओमेगा ऐसे ब्लॉक के पास ऐसे रहेगा, ऐसे ये जो है ओमेगा रहेगा ब्लॉक के पास। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, बॉल वहीं पे खड़े होके ऐसे, मतलब बॉल मूव नहीं कर रही होगी बट बॉल वहां पे रोटेट कर रही होगी, और ये रोटेट करती रहेगी अगर ग्राउंड स्मूथ है तो। I hope you would have understood and enjoyed this solution. That's all in this question. Thank you.